Assalamu alaikum everyone. I welcome you all on the training session on assessment of learning, which is set by HEC. It's a new standard adapted from the West, and IB already implemented that. So I have attended this training 1 month back on 23rd of May. It was a one-day session at Karachi University, hosted by Karachi University but organized by HEC and conducted by IBA team. So IBA QEC team was there, and most of the examples they shared during the training of IBA as they have adopted this standard. So I have shared a case study over here where IBA showed some examples of international university standards, how they have adopted AOL and how they adapted their standard, which is called assessment of learning. So the basic idea is we have internal quality department QEC, and which plays the role of internal audit for the whole organization, for all operational area, including the academics as well. But before the external auditor from HEC, which is QAA, Quality Assurance Authority, come, so we make sure that our working and our standards are as per the quality standards or as per their expected standards. So already we are doing different HEC, following the HEC standards. Recently, you all are working on business administration, working on NABAC. We are all working on RIPE. We are all working on audit performance. These are all quality standards. So this is one of the quality standards that we assess overall performance of the program, because in programs we write this, these are the program learning outcomes, these are the objective, these are the course learning outcomes, whether they are implemented, is there any physical evidence or not. So you will be today doing all these activities, and you will be assessing a hypothetical program that during the training you develop a document based on a 5 activities, and you will be assessing that activity whether the performance is excellent, average, or needs improvement. So that's the end, and in the end there is a feedback form included in your training kit. So in the end you have to fill that feedback form. All the working sheets you have to submit with your name, designation, and your signature. And I have included or the workbook that you have to do a sample example for you to refer to those examples. All those examples are made focusing on the business administration department, and you change it according to your department and programs, right? So this standard is called assurance of learning. And let's start, sir. Please, next slide. Okay, the workshop objectives. Understand the AOL philosophy and process. So I have given you a brief idea. About the philosophy. It's about continuous improvement and learning. Standards are there. I've already given an example, right? Even you are IBA, you are LAMS, your performance is excellent, but always there is room for improvement. So that's why this new standard came in for those universities who are performing at excellence. So they need also improvisation, and average and lower level universities, they have to do improvements first, then maintaining that, and then continuous improvement. So this is the main philosophy. So AOL philosophy and process, then define learning objectives, goals and objectives. This is the first activity that you will be performing today. And as per your departmental program, take an example and accordingly write the program goals and program objectives, and that should be aligned with the university vision and mission, then the goals, then the objectives. So it should be aligned with the university vision, mission, then program goals. Then the second activity you will be performing today is create curriculum maps. Then the third activity, design rubrics and assessment, and analyze. The fifth activity is analyze data for continuous improvement. This is the last activity that you will be doing, and you will be suggesting which area needs to be improvised.
right? And you will be giving some percentage of how you assessed. There are 3 levels of assessment: 30%, 50%, and 70%. So those rubrics are predefined. Based on that, you will be writing your comments. What are the main areas needs to be improved? So as I earlier told you, I attended a full 1-day workshop at Karachi University, but I have summarized this workshop, especially focusing on the practical activity, to complete these practical activity here in 2 hours. Okay, so I hope you will be performing accordingly. So we have very short time, and I'll show you. I will share the actual workshop material with you, just like I have shown you a PPT that I have made. So I have received a 64 slide PPT there in the workshop, so I can share with the participants. So when you will be doing this work for your department, you can refer to that 64 slides PPT, right? So I'll share the soft copy with you all who are participating today. Okay, shall we start the activity? Okay. Okay, first, the AOL philosophy: continuous improvement and accountability. Means improvement is there, and we have to check. Accountability is the audit, basically, that whether we are performing, we are improving, or we are maintaining. So these things has to be assessed, right? That is the accountability part, right? Performing at one time is not enough. It has to be maintained and further improvised. Then stakeholder engagement. You all are stakeholders of your relevant department and programs, where you define your program goals, you align with the objectives and assess, analyze, and improve. So all these activities, 5 activities practically, you will be performing today. Sir, please, next slide. So this is the first activity, and in your workbook, you see the instructions are, you have to draft 1 sample program learning goal and at least 2 program learning outcomes for any of your current program. Can be BBA, MBA, MS, or BS, or your relevant programs, your relevant departmental programs. Ensure they are measurable, mission aligned, means university mission aligned, and mission is already aligned with the vision, and accessible. So first, just see in the sample solution that I've already provided to you. And this sample is based on business administration, and BBA example is there, and you can write any program as per your department and any degree level. So I have taken in the example BBA and undergraduate level, and in this sample, the program learning goal, you are asked to write 1 program learning goal. So in the sample it is written, students will demonstrate the ability to apply core business knowledge to real world problems. So you write a program, what level it represents, whether it's undergraduate, master's, or doctoral level program, and the first activity is to write 1 program learning goal. Then the second thing, in this first activity, program learning objectives, you are asked to write 2 program learning objectives. So with reference to BBA, here in the sample it is written 2 objectives are: analyze business problems using quantitative and qualitative tools, and second objective is apply ethical principles in decision making processes. So you select a program as per your department, its degree level, and write 1 program learning goal and 2 program learning objectives. जब हम कह रहे थे तो एक चीज़ मिस हो गई. आपने भी कहा कि जो प्रोग्राम लर्निंग गोल्स हैं वो दरअसल यूनिवर्सिटी के विजन और मिशन से अलाइन होगा, और मिशन जो है वो उस प्रोग्राम के गोल से अलाइन होगा. आप इसको दोबारा से अपना प्रॉम्प्ट लिख दीजिए और रीराइट कर दीजिए. क्योंकि हमारा विजन और मिशन बिल्कुल अलग, बिल्कुल, हमने ये अलग किया. बिल्कुल. तो जो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें वेबसाइट से पहले विजन और मिशन को देना पड़ेगा, देन हमें प्रॉम्प्ट देना. हाँ, और प्रॉम्प्ट दें कि मुझे इस प्रोग्राम का गोल बना दें, और फिर और एक साथ कर दें. आप बोलेंगे एक गोल बना दें और 2 ऑब्जेक्टिव्स बना दें. ये हमारा विजन मिशन है, और ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा डिग्री लेवल है, और हमें ये गोल बना दें और 2 ऑब्जेक्टिव्स बना दें. यू कैन चेंज इट. जी सर, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा मतलब उसको ये भी प्रॉम्प्ट दें कि हमारा विजन
और मिशन यूनिवर्सिटी का ये है, डिपार्टमेंट का ये है। और अब ताकि वो तीनों चीजें हाँ ये भी कर यही सकते तो हैं, करा हाँ है। बिल्कुल ये करें। पहले नहीं किया था। कर लें इसको, आप ये एक्टिविटी रिवाइज कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। पहले यही और आपको जब इसको फेयर करना हो तो मुझसे एक नया ब्लैंक फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है सर, आप भी ले लीजिएगा। तो आप इसको समझ लीजिए आपका रफ वर्क हो रहा है, फेयर वाला मुझे आप फिर साइन करके और अपना कल दे दीजिएगा, मुझसे जाते हुए ब्लैंक ले जाएगा ये फॉर्म। अभी इस पर वर्किंग कर लें, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात, यूनिवर्सिटी का विजन मिशन, फिर डिपार्टमेंट का विजन मिशन, देन गोल्स एंड देन ऑब्जेक्टिव्स उस प्रोग्राम के। जी सर यहाँ पर फिर एक बार प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स पे जो काम किया कितनी कोर्सेज लिखे हैं अभी कोर्सेज ये एक अभी आगे जाएंगे, अभी इस पे नहीं करना ना, अभी मैं इसकी ब्रीफिंग दूंगा, बस आपको यहाँ ख़त्म कर देना, ये एक्टिविटी 1 ख़त्म यहाँ हो। पर एक और जी बोलिए। एक केस हम क्लियर कर लेते हैं जो अभी आपके दोबारा आप इस एक्टिविटी 3 पे ना आए, अभी हम 1 पे। हाँ मैंने आप पेज खुला हुआ इसलिए मैंने कहा। सर देखिए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लस डिपार्टमेंट फिर प्रोग्राम, ये हाँ ये अम्ब्रेलाज हैं, इसे कैस्केडिंग कहते हैं। अपर अम्ब्रेला, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, उसके अंदर, ठीक है। तो कैस्केडिंग में अपर लेवल पे यूनिवर्सिटी है, फिर आपका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर फिर प्रोग्राम है। सर अब हम दोबारा आप लोग HODs हैं तो मैं ठीक है। जी जी हाँ, आप भी यही कह रहे हैं, आप अगर इसको एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो आप इसके अंदर जाइए, ऊपर लिखें यूनिवर्सिटी लिखें, इसका विजन मिशन, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का विजन मिशन, फिर उसका प्रोग्राम, और फिर ये लेवल्स लिखें। अब लिखें ऊपर पेंसिल से लिखें यूनिवर्सिटी, उसके नीचे लिखें हायरार्की में विजन, वी लिख दें सिर्फ विजन, और फिर हाँ विजन लिख दें, फिर मिशन लिख दें, फिर इसके नीचे डिपार्टमेंट लिखें, फिर इसका विजन लिखें, मिशन लिखें। हाँ मैं लेवल बता रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रोग्राम लिखें, अब जैसे आपका प्रोग्राम जो भी वो एजुकेशन हो गया, फिर इसके गोल्स लिखें, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखें। तो डिपार्टमेंट के जो विजन मिशन आ जाएगा, फिर इसके नीचे प्रोग्राम के गोल, और फिर ऑब्जेक्टिव्स, ये जो भी नीचे आएंगे, इस हायरार्की में ये अलाइन होने चाहिए। जो हमने सर मैं एक बात नहीं पता, जब हम जो अपनी प्रोग्राम्स गोल और प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके लिए हमें AI को 2 प्रॉम्प्ट देने होंगे। एक आपको यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन, दूसरा आपके अपने डिपार्टमेंट का विजन और मिशन। ये आप एक वक्त में कर सकते हैं। हाँ। आप सारा उसको बता दें, ये यूनिवर्सिटी का है, ये डिपार्टमेंट का है, फिर और उसके मुझे, बाद और ये मेरा प्रोग्राम है, हाँ। इसका मुझे एक गोल और 2 ऑब्जेक्टिव्स, तो एक ही प्रॉम्प्ट में हो जाएगा ये काम आपका। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स बाद में ज़्यादा होंगे क्योंकि हम वर्कशॉप में, हमारा लिमिटेड टाइम है, वहाँ भी उन्होंने जो हमें वर्कशॉप में यही सेम टेम्पलेट्स दी हुई थी, ठीक है, ताकि आपको काम करना आ जाए, फिर आप अपना ब्रॉडर उस पर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने एक्टिविटी कर ली? मैं सेकंड्स की ब्रीफिंग दे दूं सेकंड एक्टिविटी की। पहले कर ली ना, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड है कनेक्ट ऑब्जेक्टिव टू कोर्सेस। अब आप देखें, आपके प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे ना, अब उस जैसे हम अपनी बिजनेस को ले लेते हैं तो हमारे पास 42 कोर्सेज हैं, और अगर हम 2 कोर्स बाहर निकाल दें अपना कैपस्टोन को, तो हमारे कितने 40 कोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम एक एक्सरसाइज 3 कोर्स और एक कैपस्टोन के ऊपर नेक्स्ट जो करने वाले हैं, तो आप वो देखें इसके अंदर। तो अभी आपने क्या करना है, वहाँ पर टेबल के अंदर आई का मतलब है वो कोर्स क्या है, इंट्रोडक्टरी। इन्हांसिंग कहते हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ी, उसको इन्हांस क्या करेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसी का, ठीक है ना। इस तरह आपके अकाउंटिंग फाइनेंस में भी होते हैं कि उसका नेक्स्ट लेवल। तो प्री रिक्विजिट किसी भी कोर्स का क्या होता है, वो इंट्रोडक्टरी होता है, उसका फिर एडवांस कोर्स, और ये फर्दर जो जैसे हम कैपस्टोन आखिरी के जैसे मैनेजमेंट या मार्केटिंग में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग आ जाती है। तो BBA लेवल के अगर प्रोग्राम में जो आखिरी कोर्स होगा उस डिसिप्लिन का, अगर वो आ रहा होगा, जैसे हम 7th 8th सेमेस्टर में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ आप क्या कोड डालेंगे, R, रीइंफोर्सिंग, ठीक है, एनहांसिंग एंड रीइंफोर्सिंग।
और रीइंफोर्सिंग उसको भी अगर मैं मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ एनी इलेक्टिव कैन बी रीइंफोर्सिंग। मार्केटिंग के इलेक्टिव्स जो हैं आपके, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम इनको एमबीए में तो स्ट्रेटेजिक नहीं पढ़ाते, तो इनके जितने इलेक्टिव्स हैं वो इस लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। देन एक्टिविटी 2, अब करिकुलम मैपिंग मैट्रिक्स, आप ये खोलिए एक्टिविटी नंबर 2 और सैंपल भी खोलिए साथ, ताकि आपको साथ साथ समझ में आए। तो आपने कोई 3 कोर्स और कैपस्टोन प्रोजेक्ट को के ऊपर ये काम करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हमने बिजनेस का लिखा है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस रिसर्च मेथड्स और कैपस्टोन, और उसको हमने यही इंट्रोडक्टरी, एनहांसिंग एंड रीइंफोर्सिंग। तो आपने सिर्फ 3 कोर्स, कैपस्टोन तो आपको पता ही है क्या है, तो आपने ये सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है। आपने पहले कोर्स खुद डिफाइन करें, ये तो मैंने सैंपल दिया ना, आप अपने अकाउंटिंग और फाइनेंस के डाल लें, आप अपने मीडिया के डाल लें जी। अच्छा, ये हम सिर्फ 3 पे कर रहे हैं, ये तो पूरे प्रोग्राम पे करना है ये काम। हाँ, ये तो अभी आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि आपको ये करना आ जाए। जैसे हमारे पास 40 कोर्स हैं, तो ये हम 40 कोर्स पे ये एक्टिविटी करेंगे। हाँ सही है। हाँ। तो ये जो आई, ई और आर है, हाँ। ये पीएलओ से अलाइन होने चाहिए जो हमने बनाए अभी, क्योंकि यहाँ पे देखें मैप उसके अगेंस्ट कर रहा है। हाँ, फिर हम इसमें बताएंगे कि जैसे ये वाला नहीं, आप एक मिनट, एक्टिविटी 2 देखें, ये है ना। हाँ, तो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के अंदर आपने जो है वो देख रहे हैं कि वो इंट्रोडक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा या इन्हांसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम जो उसके 4 हैं, तो आपके प्रोग्राम लर्निंग आउटकम जो हैं वो 4 आप बना लें इसके लिए पहले, फिर उसको देखें कि ये कोर्स उसके साथ कहाँ जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम के लिए तो सारे कोर्स वही है ना। तो आप अब नेक्स्ट एक्टिविटी ये करें डॉक्टर उस्मा, आप अपने प्रोग्राम के 4 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम जनरेट कर लें पहले। उस 4 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम में हर कोर्स को देखें कि वो कहाँ फॉल करता है। आपने सिर्फ आई, सर यहाँ पर एक आर और ई डालना है जी। जब हम आपने अभी हमें प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, अब आउटकम्स पे हमें पीएलओ पे अलाइन करना है, ये दूसरी एक्टिविटी। हाँ, तो अब आप ये काम करेंगे, जो आपकी वर्किंग शीट है, तो 4 पीएलओज यहाँ खुद हाथ से पहले 4 लिख लें, और फिर अपना कोर्स लिखें, और फिर देखें इसको पढ़ने के बाद कि वो यहाँ आएगा और उसके साथ कौन सी वर्डिंग्स आएंगी। क्या इसका पहली एक्टिविटी से अभी नहीं है ताल्लुक, क्योंकि हम अभी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, और वहाँ हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हुए थे। एक मिनट, प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, पीएलओज हमने 2 किए थे ना, अब 4 कर लें। तो यही बोल रहे हैं कि मैप द पीएलओज फ्रॉम एक्टिविटी 1। हाँ, बिल्कुल सही है। आप 4 पीएलओज बना लें 2 की जगह, और उनको फिर यहाँ पे कर लें। बल्कि एक काम करें, पहली शीट पे ही 4 कर लें, तो वही हमारे यहाँ यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। नहीं वफा, वो प्रोग्राम के जैसे बीए प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम के 4 हुए ना। अब उसके अंदर हर कोर्स 40 कोर्स जो है वो कहाँ फॉल करता है इस टेबल के अंदर, वो हमें ये वाली मार्किंग करनी है। हमें अभी 18 नहीं करने, अभी आप सिर्फ 4 प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, पहली एक्टिविटीज में 2 की जगह 2 और कर लें, फिर यहाँ पर हम ये काम करेंगे, 3 कोर्स पे करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ आपके अलग वो है, वही कह रहे हैं ना, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा। तो नेक्स्ट टास्क है, आप वो 2 जो प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उसकी जगह 2 और कर लें पहली एक्टिविटी में, तो वो आपके फिर यहाँ काम आ जाएंगे। हाँ, 2 और कर लें बस, तो वो आपके नेक्स्ट पे आ जाएगा, यूज़ करने। हाँ, ये 4 हो जाएंगे, वही हम आगे यूज़ करेंगे। वो हाँ, वो आप कोई 3 ले सकते हैं, लेकिन 4 पहले ये तो बना लें ना, जो आपकी ये 2 थे, इनको 4 कर लें। 2 मैंने बनाई है, तो फिर मैंने वो कर दी ना। अच्छा, तो 2 और बनाए, 4 करना है ना, क्योंकि आपको 4 को एसेस करना है यहाँ पे। तो आप भर के लाते हैं। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको पहले से दे देंगे। नहीं, वर्कशॉप में होता है सर कि वहाँ डिस्कशंस होती हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, फिर ब्रीफिंग होती है, तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की एक्टिविटी होती है, इसलिए जी।
अब आप लोग अपने जो भी प्रोग्राम के खुद 3 कोर्सेज डिसाइड कर लें। आपने कौन से कोर्स सेलेक्ट किए रमीश? मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, ठीक है, न्यूज़ रूम फंक्शनिंग, ये सब आपके पढ़े हुए ना, ताकि उसकी नॉलेज आपको है तब। न्यूज़ रूम फंक्शनिंग और मास मीडिया रिसर्च। ठीक है, और आपने चलें ये तो कर लिया। अब आपने 4 अपने प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे, फिर आपको ये हाँ 2 और कर लें, फिर वो आपने वहाँ पे टेबल को फिल करना। अच्छा, इसमें एक्टिविटी में देखें कि वही एक कोर्स जो है वो एक से ज़्यादा जगह भी मार्क हो सकता है। जब आप प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आई भी है और ई भी है। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 4 के लिए वो ई है और लर्निंग आउटकम 1 के लिए वो आई है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा बिजनेस एथिक्स जो है वो 3 लर्निंग आउटकम्स के लिए, एक के लिए आर है, एक के लिए आई है और एक के लिए ई है। तो ये कंप्यूटर पे जाएंगे तो ताकि कट कॉपी पेस्ट करने में आसानी होती है। हाँ चले कंप्यूटर लैब में आके आइडिया हो, हाँ ज़रा इजी हो जाता है। इसकी सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं हर टर्मिनल पे, आप हाँ उस पर डायरेक्ट। ऐसे हो सकता है कि मैं एक कोर्स ले लूँ, 2 इलेक्टिव। हाँ वो तो हमें 40 कोर्स की एक्टिविटी, क्योंकि इनकी कोई अलाइनमेंट उसने नहीं बोली। यहाँ भी देखें ना, हमने एथिक्स को अलग लिया, अब डाइवर्सिफाइड लेना। देखें यहाँ बिजनेस है, यहाँ एथिक्स है, ये सोशल साइंस है, ये बिजनेस है और ये रिसर्च है। तो आप ऐसे 3 डिफरेंट कोर्स ले लें। हाँ आप 3 कोई डिफरेंट कोर्स लीजिएगा उस प्रोग्राम के। हाँ मैं आपको जैसा बोलते हैं ना वो हाँ ताकि विधि दिए ना सही। जैसे जो आई आ रहा है आपने बताया वो हाँ आई ई आर ये उन्होंने बहुत डिटेल हमें बताया था। ये इस्माइल साहब ने नहीं वाला ये आई ई आर वाला जो भी हमें आई के मुझे जिस दिन मैं ट्रेनिंग ले रहा था कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ उस्मानी साहब भी ट्रेनिंग ले रहे थे, वो भी हमारे साथ बैठे हुए थे। और आईबी की टीम जो है क्यूईसी की, ये ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रही थी और होस्ट कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी और उसको स्पॉन्सर कर रहा था एचईसी तो 3 एचईसी सिंध एचईसी, यस। तो वेन्यू उन्होंने वहाँ रखवाया था केयू में, लेकिन उसको उनकी टीम करवा रही थी और उन्होंने ऑलरेडी आईबी ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो आप लोग मुझसे फिर इसकी डिटेल जो है 64 स्लाइड्स की जो 1 डे वर्कशॉप है, वो मुझसे आप पूरी उसकी सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा, ताकि जब आपको अपने डिपार्टमेंटल वर्क में वो आपको हेल्प करेगी। जिसके अंदर से ये मैंने क्रॉप की है, ये जो केस स्टडी, ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, उस 64 स्लाइड्स के अंदर। जी आप प्रॉम्प्ट सही चल गया आपका, कोर्सेज ले लिया आपने लीडरशिप एंड अच्छा मास्टर्स में, ठीक है, इंटरनेशनल HRM, हाँ ये डाइवर्सिफाइड हो गया, ठीक है। और कैप्स्टोन तो आपको पता ही है इसको। अच्छा अब यहाँ पर आ जाएगा, आप मास्टर्स कर रहे हो ना, तो यहाँ कैप्स्टोन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिसर्च पे। नहीं तो हम तो दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा चलें कैप्स्टोन पे पिक कर लें। लेकिन जिस प्रोग्राम में ऑप्शन नहीं है फिर उसको रिसर्च करनी होगी, आपके ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। और IRIE ये क्या है? बस यार सामने लिखा हुआ है ना, देखिए ये सामने लिखा हुआ है, देखिए। आई का मतलब वो कोर्स इंट्रोडक्टरी है, ई का मतलब इन्हेंसिंग है और रीइंफोर्सिंग है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने एक एग्जांपल दी है, जैसे ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, वो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के हिसाब से इंट्रोडक्टरी है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 4 के हिसाब से इन्हेंसिंग है, ठीक है। तो आप अपने कोर्स की, आप ये तो एग्जांपल दिए ना, एक्चुअली फिल यहाँ करना है जो आपकी पार्ट है। हाँ तो आप IRE अपना लर्निंग आउटकम पहले देखें ना, अब आप ये भूल जाएं, पहला लर्निंग आउटकम पढ़ें, इस कोर्स को पढ़ें, तो वो इन 3 में कहाँ फॉल करेगा वो आपने कोड लिख देना है। कहीं फॉल ना कर रहा हो तो आप ना लिखें, ज़रूरी नहीं कि आपको पहले में करना है, दूसरे में करना है। हाँ बस ठीक है, आगे देख लें, 2, 3, 4 में नहीं आ रहा तो छोड़ दें, फिर नेक्स्ट पे आइए। एक चीज़ क्लियर करूँगी यहाँ पे उस्मा, कि हम जैसे किसी भी हम प्रोग्राम को अगर हम असेस कर रहे हैं, कोर्स को असेस कर रहे हैं, हम किसी प्रोग्राम को, तो ऑब्वियसली हम 42 कोर्सेज को हम असेस नहीं कर सकते। तो हम उन 42 कोर्सेज जो है हमारे, उनको हम एक तरह से इन 4 पहलुओं पे हम डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर हमने कुछ कोर्सेज, कुछ हमारे इंट्रोडक्टरी होते हैं, जो है वो एनहांसिंग में गए और कुछ हमारे रिइंफोर्सिंग में गए। हम जब एनालाइज करेंगे फाइनल असेसमेंट, हम सिर्फ रिइंफोर्सिंग वाले लेंगे। हम शुरू वाले इंट्रोडक्टरी में और जो एनहांसिंग वाले हैं उनको असेस नहीं करेंगे, हम अपने फाइनल PLOs के जब हम अपनी पूरा असेस कर रहे होते हैं,
तो हम उसको हम इस तरह कॉल करेंगे कि ये हमारे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये हमारे इस टॉपिक को जो भी हमारे नहीं सिर्फ ओवरऑल प्रोग्राम की असेसमेंट है वो एक्चुअली उसके लिए आखिरी कोर्सेज के लिए नहीं है, पूरे प्रोग्राम की असेसमेंट। हाँ, रिपोर्ट उस पर लिखी जाएगी। ये दो बातें हो गई। आप वो कंफ्यूज कर रही हैं, आपने पूरे प्रोग्राम को इंट्रोडक्टरी, एनहांसिंग और रीइंफोर्सिंग पे भी करना है, जिसको हम पूरे 40 कोर्स पे नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस के लिए 3 कोर्स पे कर रहे हैं। और 3 मैंने इसलिए एग्जांपल दी कि वो ज़रा डिफरेंट हो, एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो। सर एक और जी फर्स्ट करें, मैंने इंट्रोडक्शन टू मीडिया स्टडीज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, पहला ये कोर्स। मेरा इंट्रोडक्टरी हो गया, आई हो गया। हाँ। अब उसे रीइंफोर्सिंग मैं रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं रख सकती हूँ? चलें रख लें, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि कोई और ज़रा होता है ना, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं तो उसका कोई रीइंफोर्सिंग ले लें। जैसे अभी एग्जांपल दे रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, तो बड़े आसानी से वो हम उस पर आई और आर लिख देंगे। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ एमएस हमारा प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म में, हाँ तो जर्नलिज्म के रिलेवेंट जो कोर्सेज हैं हाँ वो रीइंफोर्सिंग हो जाएंगे। मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, उसके हाँ। बाद न्यूज़ रूम फंक्शनिंग, उसके बाद मासिक जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है वो आपके रीइंफोर्सिंग। उनकी आते हैं। तो कोई भी एक ले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैपस्टोन हम कहते हैं उसको आखिरी, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब कैपस्टोन है जहाँ आपको प्रैक्टिकली वर्क शोकेस करना होता है कि ये बच्चे ने सब नॉलेज ली, ट्रैक की, अब ये कुछ प्रैक्टिकली कर सकता है या नहीं। तो HECs को हम तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट से इसको ना मिलाएं, ये कैपस्टोन कोर्स कहलाता है, यानी उस डिस्ट्रिक्ट, यानी मार्केटिंग का आखिरी कोर्स, मैनेजमेंट का आखिरी कोर्स, फाइनेंस का आखिरी कोर्स, HRM का आखिरी कोर्स, इस तरह से, ठीक है ना। सर एक से मल्टीमीडिया जर्नलिज्म जो है ना, वो हमारा इंट्रोडक्टरी में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, अब आप समझ गए थे मैंने। हाँ, उसके बाद तो मैं चाह रहा था कोई 3 डाइवर्सिफाइड किस्म के अपने प्रोग्राम के लिए, ताकि हमें आइडिया हो कि वो उनको हमें कहाँ प्लेस करना है, इसको किसको आई में डालना है, किसको ई में और किसको आर में। जी एक उसमें नहीं ले रहे। हाँ, मैं वो सीक्वेंस ना लें एक ट्रैक का, ताकि अब एक्सरसाइज हो, क्योंकि ये काम आपको फिर 40 कोर्स के साथ करना है। जी कह रहे हैं जी। तो आप तो मार्केट और वो बिजनेस को तो मैं तो सैंपल बना के दे दिया, वो तो आराम से कर लेंगे। आपका मिला बायस कह रहे हो, इसका मतलब मैं 5 एग्जांपल्स लेके आता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, हाँ बिल्कुल ऐसे अकाउंटिंग है जी, इस तरह फाइनेंशियल रेशियो है, बिल्कुल ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियो कोर्स, मैनेजमेंट है, 3 कोर्स ले लें बस, कोई डॉक्टर भी। शफीक रहमान को सुने हैं तो इसमें ये आएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जी कह वो भी तो पूछे। तो मैंने कहा ना 40 कोर्स में से कोई इंट्रोडक्टरी लें। क्योंकि वो पहले लिख दिए थे ना, हाँ अच्छा, कोई हमें हाँ चेंज कर ले, सिर्फ पेन से। और ये सारी शीटें बाद में मुझसे ले लीजिएगा ब्लैंक, तो फेयर वाली फिर सबमिट कराइएगा। ये भी समझे वर्किंग की है, ठीक है। लीडरशिप एंड ओबी हम सबसे पहले पढ़ाते हैं कोर्स। हाँ एग्जैक्टली, मेरा ये हाँ। क्वेश्चन है कि मैं फिर मतलब ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये आई है, ये ई है, ये आर है, अब ये इस पीएलओ से कैसे रिलेट हो रहा है, ये मैं कैसे वो आपकी PLO पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। जैसे मैंने किया ना, अब देखें जैसे ये है, ठीक है। हाँ, एक उसूलन ये हम इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते। PLO अपने 4 प्रॉम्प्ट पे दें और ये अपने कोर्स दें और उसको कहें कि मुझे ये मैट्रिक्स बना के दे दे, वो यहाँ क्रॉस लगा के आपकी सारी IRE सब लिख के दे देगा और अपना ये रूब्रिक बता दें कि आई का मतलब ये है, इसका मतलब है, तो उसको बोलो मुझे मैप कर दे, तो आपको मैप बनाएगा। जैसे हम अपनी CLO और PLO का मैप नहीं बनाते, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ भी उसको अपना रूब्रिक दे दें कि मेरा IR और E इन PLOs को देख के यहाँ पे मेरी ये 3 कोर्स हैं और ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस मैप को फिल कर दे। तो ये आप जब अपना करेंगे काम तो ये इस तरह करके दीजिएगा मुझे। समझिए मैं क्या बताया इनको, मैं बहुत आसान ट्रिक बता सर दी मैं है। आपको एक हाँ, मैं मैं जरा- प्रॉम्प्ट पे आप बताएंगी कि ये मेरे ये देखिए 4 सर, PLO हैं, हाँ, ये मेरा मेरे 4 PLO ये मेरा क्राइटेरिया है IE और R, आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और आप बोलेंगे मेरा कोर्स 1, 2 और 3 ये है और ये मेरा कैप्स्टोन है, मुझे ये पूरा मैपिंग करके दो, वो पूरा आपको मैप करके देगा कहाँ E लिखना है, कहाँ अगर मैं हाँ, खुद वो करना खुद चाहूँ। पढ़ेगा इसको और अच्छा, खुद मेरी लगा बात- देगा मेरी बात। जी। सर देखिए 4 क्राइटेरियाज, जी। IER, जी। ठीक है सर। हमारे 4 PLOs हैं। अच्छा, हमको फोर्स नहीं करना कि हम एक कोर्स को चारों के लिए कुछ उसको रेट सर कर मैंने दें। किया तो मैंने इसलिए किया, प्रिंसिपल्स में हम पहले से अच्छा चलें, एक और काम करता हूँ, ये आपने कर लिया ना, इसी को प्रॉम्प्ट पे उसको करवा के देखें क्या वो आपसे मैच करता है या नहीं। जो मैंने अभी आपको प्रॉम्प्ट बताया ना कि आप बोलो कि मेरे 4 प्रोग्रामिंग लर्निंग आउटकम्स हैं, ये मेरा रूब्रिक है,
ये मेरे प्रोग्राम और ये मेरे 3 कोर्स हैं, मुझे ये टेबल बना के So दो। it would take up हाँ हाँ आराम से करिएगा, लेकिन कहने का मतलब है अभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है देखिएगा कि वो वैसा बना के देता है या नहीं, तो उससे आपकी लर्निंग होगी, ये मैं कह रहा हूँ। सजेशन करके तो क्योंकि जब ये चीज़ें चेक होती हैं, राफी मुझसे एग्री करेंगे कि एक एक वर्ड काउंट कर रहा होता है। HEC जब आती है तो उसने हमें हमारे विजन और मिशन के अंदर से एक पिछली बैग में पकड़ लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप। कहते हैं आप पूरे प्रोग्राम में 4 साल में एक कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का, और आपने उसमें मिशन में कहने के जी हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहे हैं। सो एक एक वर्ड काउंट कर रहा होता है, तो हमारी परसेप्शन कुछ और है, लेकिन वो हर वर्ड को एनालाइज करेगा और आपको यहाँ मैप करके देगा। गेटिंग माय पॉइंट? आराम से करके दीजिएगा, लेकिन आपको फिलॉसफी समझ में आ गई, करना क्या है वो समझना है अच्छा। ठीक है रमीश, मिस आपको भी बता दूं, हाँ, कि आप उससे ना ये मैप बनवाएं, आप उसको बताएं कि मेरी ये 4 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम है, ये मेरे 3 कोर्स हैं, ये मेरा ये है, मुझे इस में, और ये मेरा रूब्रिक है ये वाला IRE, मुझे इसमें प्लेस करके दो, कहाँ आई आएगा कहाँ, वो आपको खुद बना, फिर अपना भी वर्किंग करें, फिर मैच करें कि आप, क्योंकि एक एक वर्ड एनालाइज होता है। हाँ स्टेटमेंट, जैसा मैंने बताया ना, हमारा पिछले ऑडिट में उसने एक एंटरप्रेन्योर का वर्ड पकड़ लिया था और उसके ऊपर इतनी बहस कि 40 प्रोग्राम के अंदर एक कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का रख के आप कह रहे हैं कि जी आप एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही सब स्टेटमेंट में एक एक वर्ड, तो ये जब आप मशीन से लेंगे तो वो एक एक वर्ड को एनालाइज करके फिर यहाँ लाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आए। हाँ आराम से कर लीजिए, मैं तो आपको, हाँ जी एक्टिविटी, अच्छा जी 3 है मॉड्यूल 4 जिसकी एक्टिविटी रूब्रिक डिजाइन एंड असेसमेंट, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट असेसमेंट, होलिस्टिक जिसे ओवरऑल कहते हैं, और एनालिटिक रूब्रिक्स। एक्टिविटी थी रूब्रिक डिजाइन। एक्टिविटी 3 भी सर खोलें तो शीट हाँ एक्टिविटी 3 खोलें और उसका सैंपल खोल लीजिए। अच्छा यहाँ तो आपका सिर्फ टेबल है जिसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 क्राइटेरिया पे आपको इवैल्यूएट करना है अपने, और एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री और 1। अच्छा आगे जाके ये जो 1 है ये इसके नीचे हाथ से लिख लीजिए, ये परफॉर्मेंस जो आएगी ब्रैकेट में आगे लिख दीजिए 30%, 1 का मतलब है 30%। आगे अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी की है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सेटिस्फैक्ट्री जो है वो आगे नेक्स्ट एक्टिविटी में 50% है, और एक्सीलेंट जो है वो 70% एंड अबव है। नहीं, पहला जो एक्सीलेंट है सर पहला 3 जो है 70% है, 2 50% है, और 1 जो है वो 30% है। 30 जी 20 होगा सर जो एक्सीलेंट के नीचे 3 लिखा है which is 70%। हाँ तो ये 70%, वो उन्होंने उल्टा पूछा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 70 50 30, 70 50 30 ये खट। अच्छा अब देखें यहाँ पर बोला है इसमें एक्टिविटी में डिजाइन 3 लेवल रूब्रिक फॉर 1 PLO, एक प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के लिए आपने 3 उसके क्राइटेरिया बनाने। तो मैंने यहाँ पर जो ऊपर एक PLO जो बिजनेस के लिए बनाया था, PLO क्या था, एनालाइज बिजनेस प्रॉब्लम्स यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया इसको असेस करने के लिए बनाया, प्रॉब्लम डेफिनेशन, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस। तो इसके अंदर देखें तीनों एग्जाम्पल में देखिएगा कि एक्सीलेंट के अंदर क्या रिमार्क्स लिखे हुए हैं और ये सारे रिमार्क्स लिखे हुए हैं। ये रूब्रिक हमने खुद बनाई है, फिर हमारा किस में फॉल करेगा हम वो टिक करेंगे। तो जब आप इसको पढ़ने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर टिक करना है उनको, अपने पहले वो लिख लीजिए क्राइटेरिया, जैसे ये क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया। तो कोई जो आपका प्रोग्राम लर्निंग आउटकम पहला है उसके लिए आप कोई, ये तो इसके लिए बनाया ना, आप अपने तो 3 क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेंगे, तो उससे जनरेट करा दें। और पहले बल्कि एक काम करें, प्रॉम्प्ट जनरेट कराएं कि मेरे इस प्रोग्राम लर्निंग आउटकम को इवैल्यूएट करने के लिए 3 क्राइटेरिया डिफाइन करें। ये लिखें प्रॉम्प्ट अपना प्रोग्राम लर्निंग आउटकम लिखें, उसको पूरा कॉपी पेस्ट मारें और कहें कि इसके लिए टू इवैल्यूएट दिस प्रोग्राम लर्निंग आउटकम डिफाइन लिस्ट डाउन 3 क्राइटेरिया, और वो 3 क्राइटेरिया यहाँ डाल के, और फिर देखें कि वो एक्सीलेंट लेवल पे कहाँ पे है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे कहाँ है, और नीड और इम्प्रूवमेंट पे कहाँ है। तो जाहिर बात है हर कोर्स का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रोग्राम लर्निंग आउटकम का डिफरेंट होगा, ठीक है, आपका अलग होगा, बिजनेस का अलग होगा। तो मैंने बिजनेस की एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, मैं समझी ना, फॉलो कर रही ना। अपना प्रोग्राम लर्निंग आउटकम एग्जैक्ट दें, PLO 1 हमें 1 पे करना है, अभी 4 पे नहीं करना, 1 पे।
तो आपको एक पे सीख जाएंगे तो 4 को भी कर लेंगे आप, समझ गए? तो उसको बोले इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 3 मुझे दे दें इसको। अच्छा, यहाँ अब आप जाहिर बात है इसको हाइपोथेटिकल करेंगे, आपने तो अभी कोई एविडेंस देखी नहीं, तो आप इसको एजम्पशन की बेस पे टिक कर दीजिएगा ताकि आप आखिरी वाले में जाके रिपोर्ट लिख सकें इस बेस पे। मैंने इससे कराया, हाँ तो इसने मुझे PLO 1 दिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ की मीडिया हाँ, थ्योरी। ये पहले आ गया आपका Application- क्राइटेरिया, इसमें भरे आप यहाँ पे। जी, दूसरा एप्लीकेशन टू रियल हाँ, वर्ल्ड मीडिया प्रैक्टिस तीसरा और कंपैरेटिव एनालिसिस लोकल वेस्ट ब्यूरो। ठीक है। अब जैसे ये पहला वाला आएगा तो अब आप देखेंगे कि वो कहाँ फॉल कर रहा है। अब आप अपने प्रोग्राम की थोड़े जानती हैं, आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ एरिया में टिक करेंगे कि ये 1 पे परफॉर्म कर रहा है, 2 पे परफॉर्म कर रहा है, 3 पे। इसी तरह इससे इन्होंने हाँ, ना सर उस पे वो भी दे दिया। ये तो बेंचमार्क दी हुई है ना, इसको बेसिकली टिक करना है कोई एक को। जैसे ये वाला है क्राइटेरिया, कोई एक टिक होगा, ये वाला क्राइटेरिया किसी एक पे टिक होगा, इस तरह ये वाला क्राइटेरिया किसी एक पे टिक होगा, इस तरह। पहले हम रिपोर्ट डेवलप करें फिर हम इसको हाँ। क्राइटेरिया बाद में खुद दें। जी। कैसे गई तो अच्छा वो खुद ही बना है। हाँ, आप इसकी पिक्चर खींच लें। हाँ राफी, ये जो एग्जाम्पल है इसी को लें और बोलें कि मुझे इसका बना दे। अभी तो हम एक एक दो दो पे कर रहे हैं, ये तो फिर पूरे प्रोग्राम के ऊपर समझ, तो पूरी एक ऑडिट की एक्सरसाइज है ये। और एक प्रोग्राम की कितनी पड़ी है और फिर उस डिपार्टमेंट में कितने प्रोग्राम्स हैं और उसकी कितनी है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हाँ राफिल, जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं फ्रॉम बैचलर्स टू डॉक्टोरल लेवल, वेरी टफ। सारी बात है, अभी तो हम नीचे वाले क्राइटेरियाज पे काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये इससे बहुत आगे है क्योंकि इम्प्रूवमेंट लेवल की बातें हो रही हैं। जो ऑलरेडी अपने बेंचमार्क अचीव कर चुके हैं तो वो भी अब इम्प्रूवमेंट करें, यानी जी बिल्कुल। चलें आगे। मिस आप दोनों जरा कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ नहीं, वो जो कह रही है ना, इससे अच्छा आइडिया कि आप इसकी वो पिक्चर लें ये वाली एग्जाम्पल की और इसको प्रॉम्प्ट दे दें कि मुझे इसके लिए बना दें, तो वो आपको इसके लिए बना देगा। सर के साथ बैठे ना, उनके हेल्प करें। अच्छा नहीं, इनके पास पूरा अपना राफे टेबल बना के पूरा दे दिया उसने, पूरा क्राइटेरिया बेंचमार्क सब कुछ, असेसमेंट। अच्छा, अब सिर्फ आपने पहला प्रोग्राम लर्निंग आउटकम अपना लिखेंगे, ये तो बिजनेस का लिखा है, आप अपना यहाँ लिखेंगे और उसको फिर एसेस करेंगे इन 3 क्राइटेरिया पे वेयर दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है जी, मैं आपको भी बता दूं, ये बिजनेस का है। यहाँ आप अपना पहला प्रोग्राम PLO 1 आप यहाँ लिखेंगे या ना इस वाली शीट पे। ये तो एग्जाम्पल है ना, आप अपना PLO 1 यहाँ लिख के और 3 क्राइटेरिया डिफाइन करके फिर उसको, तो आपने सिंपली टिक करना है इसके अंदर। ये वफा आपको भी क्लियर है, मैं समझा दूं थोड़ा सा वो वाला। यहाँ आपने जो है अपने आप अपना लिखेंगे PLO 1, ये तो बिजनेस का लिखा है ना, तो अपना PLO 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 क्राइटेरिया उससे पूछेंगे इसको एवेल्यूएट करने के क्या होने चाहिए, वो तीनों क्राइटेरिया यहाँ लिख देंगे। फिर आपने सिंपली टिक करना है कि पहला आपका जो क्राइटेरिया है इस PLO के लिए परफॉर्म एक्सीलेंट पे है, सेटिस्फैक्ट्री पे है या नीड इम्प्रूवमेंट। दूसरा क्राइटेरिया इस PLO के लिए एक्सीलेंट है, ये आपने करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, जगह चेंज कर लें। हाँ, ये कुछ एलर्जी जैसी हो रही है, हमें तो नहीं है कुछ नहीं, ये सब बैठे हुए, आई डोंट नो। आप जगह बदल लें, जगह बदल लें, उधर लेना।
जी मिस नेक्स्ट पे चलें, चलें एक्टिविटी 4 पे लाइए। आगे 4 था, अच्छा 4 आ गया। 4 आ गया था। हाँ अच्छा, एक्टिविटी 4 को खोलिए और उसका सैंपल भी खोलिए। अच्छा, सिनेरियो यू कंडक्टेड एन असेसमेंट विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो अब ये देखिए, मैंने आपको पहले से लिखवा दिया था कि आपने एक असेसमेंट की। अब ये जो पीछे असेसमेंट है इसकी आप, मैं हाइपोथेटिकल बताता हूँ, वो टेबल लाइए। इसका स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला नहीं, ये जो अभी आपने टेबल में, हाँ, इसको सम करें और टोटल जो मार्क्स बनते हैं ना उसकी परसेंटेज निकाल लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस परसेंटेज में, यानी 30 से लेके 49 तक क्या होगा, नीड इम्प्रूवमेंट, 50 से लेके 69 तक क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री, 70 एंड अबव क्या होगा, एक्सीलेंट होगा। इसका आप सम करें ना, देखें ये आपकी कितने ये है टोटल। अगर हम सारों को मैक्स कर लें, यानी अगर मैं सारों को 3 कर लूँ तो क्या आ जाएगा स्कोर? हाँ 6 आएगा ना। अच्छा सही है। हाँ 6, और हमारे क्राइटेरिया कितने? 3। हाँ तो कितना हुआ, 100%। अब जो स्कोर आएगा उसको से डिवाइड कर, 60% है। हाँ हमारा जो क्राइटेरिया, जो 3 क्राइटेरिया जो हमने, वो हमारे एक्चुअली वो असेसमेंट्स वाले हमारे हाँ, criteria हैं। तो उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि एक आपने, ये तो हमें पूरी प्रोग्राम की निकालनी है ना, लेकिन अभी इसकी आप परसेंटेज निकाल लें। और हाँ, ये जो आपने पिछला टेबल, हाँ, इसकी आप परसेंटेज निकाल लें कि आपने क्या असेसमेंट की, उसको हमें ये नेक्स्ट, हो गया ना assessment। हाँ तो बस इसको, 70। हाँ बस ठीक है। ये पूरा ओवरऑल में क्या बनेगा ना सर, इसका अगर हम सारों का मैक्सिमम कर लें, ये भी, तो टोटल क्या आएगा? तो ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो यहाँ डाला हुआ है। नहीं, अगर ये सारी चीज़ें 3 हों तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज 100% होगा ना। तो ये 100 से थोड़ा नीचे है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर ये 2 हों और ये हो तो कितना परसेंटेज बनता है, ये कह रहा हूँ। तो इससे आप ये जो देखें, मैं आपको ये बताऊं, ये जो परसेंटेज 30 लिखी है, 30 से लेके 49 तक जो है आपका नीड इम्प्रूवमेंट में आएगा। 50 से लेके 69% स्कोर होगा, वो किस में आएगा, सेटिस्फैक्ट्री में आएगा। और 70% एग्जैक्टली और अबव क्या आएगा, एक्सीलेंट में आएगा। तो इस टेबल की आपको परसेंटेज निकालनी है कि इस एग्जाम्पल में आपने कितना इसको एसेस किया। ये तो वो आपकी वो है, वो वाला, हाँ, वो जब आप कर लेंगे। तो जैसे मैंने इसको इस तरह से लिखा है, कहाँ हुआ ये, जैसे मैंने इसको इस इसका, तरह से बनाया। हाँ देखें, अगर ये छोड़ दें, अगर ये तीनों एक्सीलेंट होते तो क्या होता? 100%। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इससे क्या परसेंटेज निकलेगी, टोटल परसेंटेज। तो ये तो ज़ाहिर 100 से नीचे आ जाएगी ना। और फिर देखें वो किस स्लैब में आ रहा है। अरे मुझे समझ नहीं आती। अलग-अलग कैसे? अलग-अलग कैसे? हाँ ओवरऑल एक पीएलओ को कैलकुलेट करें। इन्होंने 3 पे टिक किया। हाँ। That means 30 out of 100 आएगा। 30%। नहीं 30 आउट ऑफ 100 इनका स्कोर क्या आ रहा है इस वक्त, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ लाती हैं तो 9। तो सर एक मैं अपना 6 की परसेंटेज निकालनी है, ये कितना आया, 3 नंबर। 3, 3, 6, 9, ठीक है। और ये आपके कितने हैं, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है ना। हम इसको जब यानी हमारा ये कितना है, 9 जो है वो 100% है, ऐसा ही है। जी, इसको दूसरे रिवर्स मैथमेटिक्स से छह कर जो है लेते वो हैं। 50% हाँ, है। 9 अगर स्कोर आता है तो वो क्या है, 100% है, ऐसा ही है ना। नहीं 9 है क्या? 9 अगर तीनों excellent हो जाए। अच्छा तो टोटल 9 आएगा। 9 आ जाएगा। अभी कितना आ रहा है, 3, 5 और 6। ओके, उसको छह। हमने नंबर हाँ, इसको कन्वर्ट अप करें तो इसका तरीका क्या होता है, ये यहाँ पे 1 रखते हैं, इसको समझ रही हूँ मैं। इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे 9 से, और फिर इसको Multiply by 6 6 करते हैं। वो समझ गए ना। इससे अब 6 की नहीं, अगर 900 है तो 6 कितना होगा, बस वो परसेंटेज निकालें और फिर उसके अंदर देखेंगे कितना होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है ये चीज। तो मैं इंजीनियरिंग नहीं करता। इससे बता दे मुझे थोड़ा आगे हमें ये सबको समझाएंगे मैं समझा इधर ऐसे। जो नंबर दिया है हाँ, अगर मैं 3 इसको भी दूं, 3 इसको भी दूं, 3 तो 3, 3, 6 क्या 9 आ जाएगा ना। 9 कितना होगा, 100% स्कोर हो जाएगा। ऐसा ही, ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ भाई, इसको मैंने हाँ, अच्छा ये इसको भी सबको अगर मैं ये दूं तो ये टोटल ये फ्रेमवर्क 100 को रिप्रेजेंट करता है ना, कि सारे एक्सीलेंट हो जाए, 100% हो गया अभी। लेकिन ये नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3, 4, 5 और फिर इसके 2,
5, 6, 7, तो 7 कितना % होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। ये तो है ही नहीं ना, आपने तो ये 2 इवेल्युएट किए ना, अगर आप यहाँ भी टिक करें मैं उसको भी फिर ऐड करूंगा। जो जिसको हम टिक हाँ करेंगे हाँ वो तो ये 9 अगर भाई देखें अगर एक्सीलेंट आ जाता है सारा तो वो 100% है, लेकिन एक्सीलेंट से नीचे तो किया ना मैंने, इसको 3 लिए और इसके 4 लिए, 2 और ये 2 है ना इसकी मार्क्स, 2 लिखा है ना, ये 2 4 और ये 3 7, तो 7 हाँ तो 7 कितना % होगा उसको बेटा 1 होगा ना, एक आपके इवैल्यूएशन तीनों में से 1 में होगी। ये अब सर आपको मैथ सिखाएंगे, अब देखिए नहीं समझ में आ बेटा ये तो मैंने हाइपोथेटिकल बताया, अगर तीनों एक्सीलेंट हो जाते हैं तो 100% होगा। 3 ये 9 हुआ, लेकिन 2 4 4 3 7 ये 4 हो गए। हाँ, आपका केस में 7 बन रहा है, तो 7 कितने % बनेगी? वफा समझा लूं थोड़ा सा एक पेंसिल में, अगर मैं इसको भी कहूँ ये भी मेरा एक्सीलेंट है, ये भी मेरा एक्सीलेंट है, ये भी मेरा एक्सीलेंट है, तो 3 3 3 6 9 बन गया। 9 कितना बनता है? 100% के बराबर। अब आपके केस में बन रहा है यहाँ से 3 4 5 और ये 1 6, तो 6 कितना % होगा? 9 अगर 100 है तो 6 कितना % होगा? ये आपको इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेंज पता चले। हाँ ठीक है, समझ में नहीं आया सर हमारे आप तो ग्रेट मैथमेटिशियन है यार। नहीं मैथमेटिशियन तो मैथमेटिक्स मुझसे करा ले, तो मैथमेटिशियन बता रहे हैं। ये मैथमेटिक्स थोड़ी है कोई। अच्छा इन्होंने निकाल भी लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर आगे वाले में हमें रिपोर्ट लिखनी है इस असेसमेंट के ऊपर। सर 66% आ गया, बिल्कुल। satisfactory आ गया। हाँ तो अब आपने रिपोर्ट लिखनी है आगे जाके, ठीक है। हाँ तो आखिरी एक्टिविटी में हाँ एनालिसिस भी तो लिखेंगी ना कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या रिकमेंड कर रही हैं। आप ऑडिटर है ना, तो आप उसको रिकमेंड भी तो करेंगी। तो आप अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन है सर। आप अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन तो आपकी नहीं मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी? जी हाँ फिर इसको करेंगे तो 4 नहीं, हमें देखें हर में से 3 में से 1 लेना है। जैसे आपने पहला लिया 1, इसमें से आपने ये लिया, इसमें बस यही रहेंगे, तीनों नहीं ले सकते ना। बिल्कुल एक साथ थोड़ी होता है कि वो सेटिस्फैक्टरी भी है और एक्सीलेंट भी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 3 में से 1 क्राइटेरिया होगा। अच्छा जी, रूब्रिक डिजाइन एंड असेसमेंट, एनालाइज एवल रिजल्ट्स, आइडेंटिफाई करिकुलम गैप्स, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, क्लोजिंग द लूप। यानी ये आपने फाइनल रिपोर्ट लिखनी है। तो आप एक्टिविटी नंबर 4 खोलिए और उसके अंदर देखिए, जहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये परसेंटेज वाइज टेबल। तो एग्जाम्पल में मैंने 30% असेसमेंट के ऊपर लिखी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है इस इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, व्हाट इशू डू यू आइडेंटिफाई इन लर्निंग परफॉर्मेंस। तो हाइपोथेटिकल हमने कैलकुलेट किया था 30% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड in need improvement category indicating difficulty applying analytical skills। ठीक है, एविडेंस उसको ऐसी मिली होगी जिसमें उन्होंने कहा इनके एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इम्प्रूवमेंट्स एक्शन वुड यू रिकमेंड। तो एज ए ऑडिटर यहाँ पे लिखा गया है इंक्लूड एडिशनल केस बेस्ड असाइनमेंट्स एंड प्रोवाइड हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन एनालिसिस टूल्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ दी, अब ये क्वेश्चन सारे डाल देना इसके, वो आपको खुद बताएंगे। और परसेंट विच पार्ट ऑफ द कोर्स और टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी एडजस्टेड। तो रिकमेंडेशन इन द टीचिंग ऑफ बिजनेस एनालिसिस टूल्स इन अर्ली वीक्स नीड्स मोर प्रैक्टिकल सेशंस। तेरे पास एनालिटिकल स्किल्स है तो प्रैक्टिस, जो आज आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, एंड यूज सॉफ्टवेयर टूल्स। तो कोई उसमें सॉफ्टवेयर टूल अगर है अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, तो उनको वो टूल भी सिखा दें। ठीक है ना, तो इस ये आपको एग्जाम्पल बताई हुई है। तो अब आपकी जो परसेंटेज जहां फॉल कर रही है, जैसे मिस ने कहा उनका 66% है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री में फॉल कर रहा है। तो ये सेटिस्फैक्ट्री के हिसाब से इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आपका जहां फॉल कर रहा है, किसी का नीड इंप्रूवमेंट पे कर रहा है जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, और किसी का एक्सीलेंट पे कर रहा है, तो एक्सीलेंट का मतलब भी 100% नहीं होता, उसमें भी इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का है। ठीक है, तो तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 2 3 उनकी परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, और आपने अपनी सजेशंस यहाँ दे देनी है बस राइटिंग में। दैट्स द एंड ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है, बस ये लिख दीजिए जल्दी से, फिर आप फीडबैक भरेंगे मैं कैसा था, कैसा मैंने एक्सप्लेन किया, समझ आया नहीं आप।
हाँ करेंगे ना, वो देना है, रिक्वायरमेंट है फीडबैक फॉर्म की। फिर आपको हम सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट भी आगे आप लोग के। फॉर्म एक कैसे लिखा सर कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अपने पहले ले लें सर, आपको पहले दे देता हूँ। मैंने अपने लिखे थे ना क्लैरिटी इन द कोर्स। अब सर हम हाँ। इसकी जो हमारी असिस्टेंट है सर, हमारी ओरल कम्युनिकेशन, हम इसको अपने कोर्सेज से अलाइन करके जी बिल्कुल, प्रोग्राम वो तो पूरा, हम तो एक छोटी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये पूरी 1 डे वर्कशॉप है, 64 स्लाइड्स हैं, वो मैं सब आप लोगों को शेयर करूंगा, फिर आप लोग उससे देखिए। लेकिन आप लोगों ने काम कर लिया तो आप इजीली उसको 64 स्लाइड्स में से पिक कर लेंगे। हमने जो यहाँ पे किया है, ये हमने पहले कोर्स आपने लिखा ही नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली वो मेरा हाँ। मैं चाह रही थी मैं हाँ, आप 3 यहाँ कोर्स लिखेंगे, अगर आपके यहाँ वो प्रोजेक्ट जो भी है वो आप उसको बताएं, उसको आप बताएं कि ये मेरा प्रोग्राम है, इसका लेवल ये है, ये इसके 4 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, ये मेरे 3 कोर्स हैं और इसकी रूब्रिक ये है, IER का मतलब क्या है, मुझे ये मैप बना के दो, ये आपको मैप बना के देगा। जैसे मैपिंग उसमें नहीं करते PLO से, ये आपको यहाँ IE और R लिख के देगा। मैंने बना लिया ना, हाँ। अब इसी से हमने लेकिन आप अपना बनाने के बाद मशीन से कंपेयर भी करें। हाँ, इन्होंने तो बहुत आसानी से किया, उन्होंने इसी की पिक्चर खींची और उसी को क्या कर दो, उसने इस टेबल में भर दिया उठा के। वो उन्होंने एग्जाम्पल उठाई ना, एग्जाम्पल के वाला लिया और उसी से उन्होंने डॉक्टर उस्मान ने उसी से बना लिया। जी ठीक है। तो सर यहाँ पे जब हम परसेंटेज लिखेंगे तो फिर आप इसमें इन्हीं कोर्सेज से ही हम करेंगे? नहीं, ये गलत हो। देखें, आपके 3 क्राइटेरिया हैं, ये आपका प्रोग्राम लर्निंग आउटकम है। इस प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के ऊपर इस क्राइटेरिया को देखें कि ये आपको एविडेंस ऑडिट करते हुए एक्सीलेंट मिली, सेटिस्फैक्टरी मिली या नीड इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपको ये लगा एक्सीलेंट है, ठीक है, इसी को आपने पढ़ा और आपने इस क्राइटेरिया को देखा ये किस लेवल पे फुलफिल हो रहा है, मे बी ये यहाँ आ रहा हो, ऐसे ही बता रहा हूँ। और इसको आपने देखा, ये पढ़ा तो आपने कहा ये भी मुझे ये लग रहा है, ये आपकी असेसमेंट है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, अगर इसका टोटल स्कोर सारे एक्सीलेंट हो जाएं, ये 3 6 3 9 कितने बनते हैं? 100%। यहाँ पे बन रहा है 3 4 1 और ये 5, तो ये कितना परसेंट बनेगा, ये आपने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इस परसेंटेज को फिर यहाँ पर देखना है कि आप कहाँ फॉल करते हो। जैसे डॉक्टर उज़मा का 66 पे आया, तो यहाँ पे 30 से लेके 49 तक क्या है, नीड इम्प्रूवमेंट। 50 से शुरू होगा सेटिस्फैक्ट्री और यहाँ तक क्या आएगा 69 तक सेटिस्फैक्ट्री है, और 70 के ऊपर जितने हैं वो सब एक्सीलेंट है। तो अब आपको देखना है कि आप किस रेंज में, यानी आप 30 से 49 में फॉल कर रहे हैं या 50 से 69 में फॉल कर रहे हैं या 70 से ग्रेटर कर रहे हैं। तो जब ये आपको मिल जाएगा तो आपने अपने ये रिकमेंडेशन उसके हिसाब से देनी है। इसका सैंपल में मैंने दिखाया कि कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वैसी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए। और ये जो है हम इसको कहते हैं, हमसे 5 नंबर ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप उसको दें प्रॉम्प्ट में, आप कहें कि 9 अगर 100% है तो 5 कितना परसेंट होगा बता देगा आपको। हाँ, नहीं, आप प्रॉम्प्ट पे भी लिख सकते हैं, इफ़ 9 इज़ 100% हाउ मच इज़ 7 या हाउ मच इज़ 6। आप ये भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इफ़ 9 इज़ 100% हाउ मच परसेंट विल बी 6। यानी ये क्राइटेरिया दीजिए और फिर 6 को पूछें कितना परसेंट। हाँ बस ठीक है, गुड। आप तो जीत गए। हाँ मैं दे दूँ सबको, आपको सबको फ्रेश शीट दे दूँ। हाँ मैं सबको दे दूँ। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं राफी, कितने लोग हैं हमारे पास? सर आप फेयर वाली नहीं देंगे, यही दे रहे हैं? आप कह रहे थे ना मैं लाऊंगा फेयर करके ये शीट। अच्छा ये झूठ हो जाएगा ना। अच्छा ठीक, कल दे दीजिएगा। अभी ये रफ वाली दे दें और मुझे कल फेयर वाली दे दीजिएगा। अभी हाँ ये वाली दे दें, ये अभी ये वर्किंग जो हुई है ये दे दें मुझे। हाँ ये दे दें। ये वो है फीडबैक। हाँ फीडबैक तो दे दिया, वो वाली वर्किंग भी देना, और ये ब्लैंक तो दोबारा कर लीजिएगा, वो ऐसे ही दे दें। हाँ उसको दे के नहीं फ्रेश बना लीजिएगा, अब तो सारी नॉलेज तो है ना। हाँ वर्किंग नहीं है सर, ये वाला जो आप कर रहे थे ना रफ वर्क, ये वाला ये
ये दे दें, और वो मैंने आपको नया दे दिया ना, ये वाला, ये आप पूरा नया बना दीजिएगा मुझे। अच्छा ये तो मेरे पास है, ये मुझे जमा करना है, ये आप नया ये ले, अलग है। हाँ ये अलग है। ये नया दिया ना आपको, ये अच्छा ये तो सैंपल है, अब कंफ्यूज हो रहे हैं। नया दे नहीं, हाँ दे, ये ये आपको दे दूं, ये तो मेरे पास रहना चाहिए ना, कैसे करूँगा? ये नहीं किया। फ्रेश कर लीजिएगा, नहीं नहीं, ये वो एक अलग चीज है। आप रख लें, चलो भाई मैं क्या बोलूँ आपको, ये ले रहे मिस, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आप और वो फीडबैक फॉर्म भेजें, वो आप बाद में आराम से कर लीजिएगा, मुझसे ब्लैंक शीट ले लीजिए, ये आराम से ये दे दें जितना भी हुआ है, छुट्टी देर में होगी, अभी सर्टिफिकेट भी है डिस्ट्रीब्यूशन। फीडबैक भरे ना जल्दी से, मिस फीडबैक फॉर्म भरिए, आप भी फीडबैक, वफा आप भी फीडबैक भेजिए, हाँ हाँ सबको दे दो। मैं वो आपको वो 10 थे तो हम तो ज़ाहिर है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, ठीक है। सैंपल मेरे काम का नहीं है, आपके पढ़ने के लिए, मुझे वो चाहिए। अरे ये तो मैंने लिखा है ना इसी। हाँ तो ये फिर दीजिएगा ना मुझे, हाँ दे दो, ये ले ले। ये तो सैंपल आपके पढ़ने के लिए सर, क्यों आप सैंपल मुझे क्यों रिटर्न कर रहे हैं? उसी से पढ़ के तो आप काम करेंगे। नहीं नहीं सर, इससे पढ़ के इतनी मेहनत की है। मिस फीडबैक भर दीजिए जल्दी से, फीडबैक फॉर्म भरना है, फिर आपकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फोटोग्राफ सेशन होगा, फोटोग्राफ्स लोगे ना सर्टिफिकेट्स की, आप मेहमान खुसूसी होंगे, पहले हम आपको देंगे सर्टिफिकेट, फिर आप हमें दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर उस्मान से कहते हैं वो नहीं कोई सर्टिफिकेट पास नहीं। हो गया काफी है मुझे। हाँ नहीं ये समझ में आ गया है, ये है हम आपको। सो दैट्स इट, ये लोग अपनी सबमिशंस करा रहे हैं, फीडबैक सबमिट करा रहे हैं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।